Hey, hi everyone. My name is Vinita, and today in this session we are going to discuss UPSC Maths Optional Paper 1. हम इसका solution discuss नहीं करेंगे. I'll be letting you know the topics that are important for 2026 and for 2027 people as well. You should have an idea कि किन topics से ज़्यादा questions आते हैं. Because the paper, the pattern, the trend remains the same every year, almost same. तो I'll not be discussing कि मतलब I'll not only discuss the questions in this paper, the topics in this paper, but I'll also tell you the peripheral topics कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया है देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट ईयर पेपर और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द दिस ईयर पेपर, है ना. तो वो सब भी I'll be discussing the peripheral topics as well, so you will have a rough idea what are the topics you need to prepare. So coming to the first question, you very well know कि अपना जो सेक्शन ए होता है इसमें अपने पास लीनियर अलजेब्रा आता है, इसमें कैलकुलस आता है, इसमें एनालिटिक ज्योमेट्री आता है. एंड these three sections are pretty much doable if you work hard. I mean the questions here are of predictable nature, not very tough, है ना. एंड यू शुड टारगेट 100% accuracy in this section because see, in the section B we have a subject called statics and dynamics, which is not very tough but different because it has some physics wala portion, but again it is mathematics dominated, but the concept is of physics and it can be tricky, है ना. So in section A it is advisable that you score 100%, 95% if you ask normalization. After normalization your accuracy should be 100%. देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें द क्वेश्चन इज सेइंग कि कैन दिस सेट बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस R⁴. Sorry, R4 it is an ordered pair. It is an ordered pair of 4 real numbers A, B, C, D. ठीक है. If you know this question is from vector space. This question is from vector space topic, basis topic, linear independence, linear dependence, combination of vectors. ये सारे topics इसमें हैं. This is again as per the trend of UPSC. हर साल you can definitely expect questions from vector space. This is like very important. कुछ भी नहीं करना है इसमें. जो आपके पास R4 का स्टैंडर्ड बेसिस होता है that is 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस को लो और ये जो 3 वेक्टर्स गिवन है ना और ये जो 4 वेक्टर्स हैं इनकी एक मैट्रिक्स बना लो. सो उसमें सात वेक्टर्स हो जाएंगे. यू हैव टू डिलीट द डिपेंडेंट वेक्टर्स बिकॉज सी बेसिस इज़ ऑलवेज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. सो उन 7 वेक्टर्स में से यू विल बी एबल टू डिलीट 3 वेक्टर्स. सो आपके पास 4 वेक्टर्स बच जाएंगे. अगर आपके पास 4 वेक्टर्स बच जाती हैं दैट मीन्स दैट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस. अंडरस्टूड माई पॉइंट. तो ये आप कर सकते हो. जस्टिफाई योर आंसर. सो यू कैन गिव द जस्टिफिकेशन एज वेल. ऑल्सो दिस सेट मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. इवन इफ इट इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई बात नहीं, फिर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं. मैंने प्रोसेस आपको बता दिया किस तरह से एक्सटेंड करना है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is of 10 marks. See section A में there will be 2 questions from linear algebra, 2 questions of calculus, 1 question from analytic geometry. You know that every question has 5 parts in it. हर question में 5 parts होते हैं and all are of equal weightage. Like every question is of 10 marks. Every question is of 10 marks. Understood? So the entire question is of 50 marks. ठीक है. सो यू नीड टू प्रिपेयर वेल. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात करता है रेंज, रैंक, कर्नल, नलिटी.
इफ़ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी वी डू क्वेश्चंस लाइक दिस। आई मीन जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो इन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी स्टडी रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वी स्टडी रेंज से ही रैंक निकलती है, ठीक है। फिर हम नलिटी पढ़ते हैं, फिर हम नलिटी के डायमेंशन पढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ नलिटी, है ना। फिर इसमें एक डायमेंशन थ्योरम भी आती है। सो दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी अगर आप इफ़ यू लुक एट द होल सिलेबस, entire syllabus all at once, you will feel like कि maths optional has huge syllabus and all, but if you look at the paper you will see कि there is so much like predictability in the paper and you can easily I mean guess the next year questions, कहाँ से questions आने वाले हैं। so linear transformation हो गया, vector space हो गया, ये क्वेश्चन आपका है कैलकुलस से। तो पहले मैं लीनियर अलजेब्रा के बता दूँ आपको, है ना। पहले लीनियर अलजेब्रा की डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, टी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट बेसिकली वी आर गिवन टी एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर हमें टी गिवन है। इनफैक्ट एट 3 पॉइंट्स टी इज़ गिवन टू अस, वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड टी। इसका मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है कि जब भी हमें टी एट ए बी सी फाइंड करना है देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू राइट ए बी सी एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ जो गिवन वेक्टर्स हैं जिन पर टी गिवन है, जैसे 1 1 -1 है, 4 1 1 है एंड देन 1 -1 2 है। सो यू बेसिकली राइट ए बी सी एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स एंड देन सिंपली अप्लाई टी ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड फिर टी अप्लाई कर दो। You will smoothly get t from here, like this is like the easiest question from it, है ना। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ईजिली हो जाएगा। ऑल राइट, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा से एक ये क्वेश्चन आया है, हमें इक्विलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। इक्विलॉन फॉर्म कुछ भी नहीं होती है, यू सिंपली हैव टू, जैसे यहाँ पर पिवोट एलिमेंट है, यू हैव टू मेक एवरी एलिमेंट बिलो द पिवोट एलिमेंट एज 0। Now what is the meaning of pivot element? The very first non-zero entry of every row. Like this is my first row and this is the first non-zero entry, then this is the pivot of the first row. मान लो कि सेकेंड रो में यहाँ पर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, देन दिस इज़ द पिवट ऑफ द सेकेंड रो। अंडरस्टूड माई पॉइंट। सो इसके नीचे हमें ज़ीरो बनाना होता है और इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है ना हर रो की, वो इंक्रीज़ होती जाती है। लाइक इन द फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इज़ द पिवट, इन द सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट इज़ द पिवट, इन द थर्ड रो मे बी पिवट यहाँ पर होगा। अंडरस्टूड। सो सबसे ज़्यादा ज़ीरो कहाँ पर है? सबसे नीचे वाली रो में। पिवोट एलिमेंट से पहले ज़ीरो की बात कर रही हूँ मैं। सो ये पिवोट है, इससे पहले 3 ज़ीरो है, ये पिवोट है, इससे पहले यहाँ पर 2 ज़ीरो है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। ये पिवोट है, इससे पहले यहाँ पर 3 ज़ीरो है, ये पिवोट है, इससे पहले यहाँ पर 2 ज़ीरो है। इस तरह से ये इक्विलॉन फॉर्म होती है। फिर एक अपने पास आती है रो इक्विलॉन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड इक्विलॉन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड इक्विलॉन फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो पिवोट एलिमेंट है ना उसके नीचे वाली एंट्रीज़ को तो ज़ीरो करना ही है, उसके ऊपर वाली एंट्रीज़ को भी ज़ीरो करना होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ पिवोट बचता है जो कि नॉन ज़ीरो रहेगा। सो वो इसका एक्सटेंडेड होता है, इसीलिए वो वाओ द क्वेश्चन इज़ ऑफ 15 मार्क्स। मतलब मुझे लगा ये 10 मार्क्स का होगा, बट सच एन ईजी क्वेश्चन एंड इन 15 मार्क्स ईज़िली कर सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। उसके बाद ये भी लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो वेक्टर स्पेस हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वेक्टर स्पेस में सब कुछ आ गया, बेसिस आ गया, डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स आ गया, स्पैनिंग सेट आ गया, एवरीथिंग कम्स इन द वेक्टर स्पेस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सब कुछ आ गया, रेंज, रैंक, नलिटी, डायमेंशन, एवरीथिंग इन। और फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो जनरल रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो वो भी इसमें आ गया। उसके बाद जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हाँ बस इतना ही, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। देन कम्स द आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़,
डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, उतना क्वेश्चंस डायगोनलाइजेबिलिटी से नहीं आते हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद जैसे रैंक फाइंड करना, ये जो क्वेश्चन है ना इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना, दैट इज़ रिलेटेड टू द रैंक। मोस्टली यूपीएससी आस्क द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, उसमें भी सेम ही चीज़ करनी होती है हमें, उसमें भी हमें मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना होता है, बट यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली इक्लोन फॉर्म पूछ रखी है, रैंक नहीं पूछ रखी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी। सो दीज आर लाइक द ब्रॉडर टॉपिक्स जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं। उसके बाद ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, 8 मार्क्स की थ्योरम है ये, और हमें डायमेंशन, ये एक्चुअली एक थ्योरम होती है कि जो डायमेंशन ऑफ v बाई w होता है ना, वेयर w इज़ ए सब स्पेस ऑफ v, दैट इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। सो एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आई मीन वी डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन, जैसे मेरे स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली मैंने ये नहीं पढ़ाया हुआ था, बट आई हैव टोल्ड देम द सब स्पेसेस, मैंने उनको सब स्पेसेस बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था। तो थोड़ा सा ना इतना दिमाग आपको लगाना होता है कि कुछ ना कुछ करके वो अटेम्प्ट करके आओ, है ना। कि आपको पता है कि P2 इज़ ए सब स्पेस ऑफ P4, है ना, P and denote the vector space of all basically, so because P2 किससे बना हुआ होता है, P2 is made up of 1x x square, है ना, एंड P4 इज़ मेड अप ऑफ 1x x square x cube, है ना, x टू द पावर 4। सो P4 का जो डायमेंशन होता है दैट इज़ 5, P2 का जो डायमेंशन होता है दैट इज़ 3। सो बेसिकली P2 इज़ कंटेन इन P4, और हम ईज़िली ये थ्योरम लगा सकते थे, है ना, ये v बाई w एंड डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। सो ये आपका लीनियर अलजेब्रा का डिस्कशन था 2025 का, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपको बताए, सबसे पहले तो मैट्रिसेस के बेसिक्स सीख लेना बहुत अच्छे से, है ना, आपको मैट्रिसेस का सब पता होना चाहिए, एवरी टाइप ऑफ मैट्रिसेस यू शुड नो। सी क्या होता है, आप सोचोगे कि मैं मैट्रिसेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है, यू नेवर नो कि वो चीज़ कहाँ काम आ जाए, सो अपन को क्यों रिस्क लेना है ना। वैसे भी यार वो बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद रैंक पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद रैंक के बाद आप रैंक पढ़ने के बाद वेक्टर स्पेस पढ़ लेना, वेक्टर स्पेस पढ़ लेना, एंड आफ्टर स्टडिंग वेक्टर स्पेस यू विल बी एबल टू डिटरमिन लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, बिकॉज रैंक आपने पढ़ लिए। देन यू विल बी एबल टू डिटरमिन द बेसिस, देन यू विल बी एबल टू स्टडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then linear transformation का matrix representation of linear transformation, then general representation of linear transformation, then you will be able to study the general representation, and then what should I range, yes, range of linear transformation, then rank of linear transformation, then nullity of linear transformation, so like this, ठीक है। everyone should have the syllabus and PYQs with you, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागो, कुछ नहीं होगा बहुत ज़्यादा बुक्स से, PYQs को रेफरेंस मानकर पढ़ो, है ना। गाइडेंस इसमें ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर आपको जैसे समझा सकता है वैसे शायद आपको खुद से कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो दिस इज़ इट। अगर आप मुझसे बुक्स पूछना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बुक्स डेफिनेटली बता दूँगी, बट सीरियसली थोड़ा एक्सपेंस मतलब उसमें आपका होगा, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर होगा, एंड देख लो, इफ़ यू वांट टू नो द बुक लिस्ट आई विल टेल यू द बुक लिस्ट।